آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصیلی کا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ، علاقہ مکینوں سے ملاقات کے دوران بلدیاتی مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی، ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے کہا ہے کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے کے ساتھ عوام میں جا کر مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو، ایگزیکٹو انجینئر امداد سولنگی اور یوسی چیئرمین تاج محمد وسان کے ہمراہ سچل و دیگر علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی نمائندے ہیں اور کوشاں ہیں کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ بلدیاتی مسائل کے حل کو یقینی بنا کر انہیں ریلیف پہنچایا جائے۔ سچل ٹاؤن کی بڑی یونین کمیٹی ہے جہاں بلدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو نے اس موقع پر کہا کہ چیئرمین صفورہ ٹاؤن کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیاتی مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دستیاب وسائل میں ٹاؤن کی یوسیز میں بلدیاتی مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی جانب سے پھولوں کی نمائش کا 8واں روز اراکین صوبائی اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ عوام بھی خوب جوش میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے تاریخی فیملی فلاور فیسٹیول کے 8ویں روز میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی، جانی میمن ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ سیدہ تحسین آبدی اور رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق آوان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر نائب صدر ضلع کورنگی ڈاکٹر طاہر خان، جنرل سیکریٹری پی ایس 95 علی نواز کوریجو، سینئر نائب صدر پی ایس 94 اسد مجاہد، سینئر نائب صدر پی ایس 93 ندیم اختر، جنرل سیکریٹری لیڈیز ونگ ضلع کورنگی شبانہ اویس، چیئرمین یوسی 11 مرتضی علی میمن، چیئرمین یوسی 2 قاری اسرار ٹاؤن کونسلر نازیہ ناز، ٹاؤن کونسلر عذرا بانو، نعیم آوان، رضوان آوان، اے ڈی چانڈیو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ندا ناز سمیت ہزاروں کی تعداد میں فیملیز نے شرکت کی۔ عیدگاہ گراؤنڈ کورنگی میں جاری 10 روزہ فلاور شو کے میوزیکل پروگرام اور رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جس کے بعد چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مہمانان خصوصی کو پھولوں کی نمائش کا دورہ کروایا۔ ڈائریکٹر پارک معین جت نے نمائش میں لگے مختلف پھولوں کی کوالٹی کے بارے میں آگاہ کیا اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مہمانان خصوصی کو اجرک اور شیلڈ پیش کی اور میوزیکل پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس موقع پر سندھ کے معروف گلوکار و فنکار اصغر کھوسو خصوصی طور پر موجود تھے۔ اصغر کھوسو کی خوبصورت پرفارمنس نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا، جبکہ فیملیز، خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے جشن کے ماحول کو مزید پر رونق بنا دیا۔ شرکا نے فنکاروں کی پرفارمنس کو بھرپور داد دی اور پروگرام کے اختتام تک پنڈال تالیوں سے گونجتا رہا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعلیٰ سندھ سیدہ تحسین آبدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی جانب سے عوام کو صحت مند تفریح فراہم کرنا خوش آئین اقدام ہے۔ انہوں نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ثقافتی اور تفریحی پروگرام میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں اور عوام کے لیے خوشی کا پیغام ثابت ہوتے ہیں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جشن بہارا کے آخری روز بذریعہ قراندازی خوش نصیب افراد میں عمرے کے مکمل پیکیجز اور 10 موٹر سائیکلز تقسیم کی جائیں گی، جس سے عوام کی دلچسپی اور جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی نے فلاور شو کے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور انتظامات کو سراہتے ہوئے اسے ایک کامیاب اور یادگار ایونٹ قرار دیا۔ جشن بہارا کے 8ویں روز کے میوزیکل پروگرام نے کورنگی ٹاؤن کے عوام کو بھرپور تفریح فراہم کی اور پورا گراؤنڈ خوشی اور مسرت کے مناظر پیش کرتا رہا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار نے اولڈ سٹی ایریا کے علاقے پاکستان چوک لائٹ ہاؤس، گاڑی کھاتا اور برنز روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کچی اور پکی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की आराम बाग डिवीजन में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां ओल्ड सिटी एरिया के इलाके पाकिस्तान चौक, लाइट हाउस, गाड़ी खाता और बर्न्स रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कच्ची और पक्की तजावुजात का खात्मा जारी। बर्न्स रोड की अंदरूनी गलियों में फुटपाथ पर बनी मुतादिद दुकानें और दीगर तजावुजात मस्मार कर दिए गए। तजावुजात माफिया ने कदीमी इलाका बर्न्स रोड की कुशादा सड़कें तंग कर दी थीं। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार का कहना है कि फुटपाथ और सड़कों के बीचों बीच मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, चबूतरे और सन शेड्स कायम कर दिए गए थे। आराम बाग डिवीजन में जीरो टॉलरेंस के तहत कच्ची और पक्की तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। ओल्ड सिटी एरिया के खूबसूरत इलाके कब्जा माफिया की वजह से कच्ची आबादियों का मंजर पेश कर रहे हैं। आराम बाग डिवीजन में अभी तजावुजात के खात्मे का आगाज है। कुशादा सड़कों को उनकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। ट्रैफिक के मसाइल खत्म होंगे और पैदल चलने वाले शहरियों को फुटपाथ भी मुयस्सर होंगी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां दिन रात जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी की जानिब से फूलों की नुमाइश सजाई गई है, जिसे आवाम की पजीराई मिली। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी के तहत मॉडल कॉलोनी टाउन में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। हजरत मोहानी पार्क रफ़ाए आम यूसी आर्ट में जारी फूलों की नुमाइश में टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम इमरानी ने शिरकत की। हजरत मोहानी पार्क पहुंचने पर डायरेक्टर पार्क वासिक जफर ने टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर को खुश आमदीद कहा और मोज़ीज़ीन का इस्तकबाल किया, जबकि उन्हें फूलों की नुमाइश का दौरा करवाया और नुमाइश में रखे गए फूलों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फूलों की नुमाइश सलटसोन इंतजामिया का आवाम को तोहफा करार दिया। देखिए, हम इसको कहते हैं, ये जो बहार का मौसम है, इसी में जो है हम दरख्त बोते हैं, सारी चीज़ें करती हैं। पूरे कराची में और पूरे सिंध में कोशिश है कि भाई जो है हमें ये पौधे जो लगाएं और इसको जो है बंदों लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। इसलिए हमने ये कोशिश किया है। हर टाउन में होता है, मगर हमारे जो मॉडल टाउन है इसी में हमारे खसूसी जो है चेयरमैन साहब या हमारी जो टीम है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं या जो भी हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट लिए और ऐसे खूबसूरत जो है मनाज़र आप देख रहे हैं, इन्होंने इस नुमाइश का एहतमाम किया है। ताकि देखो बच्चे, ये हफ्ते से 10 दिन से चल रहा है, तो मेल फीमेल बच्चे और घर वाले सारे जो हैं इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम और पौधे और दरख्त भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी, फोकस होगा कि हम जो अपने पार्क जो हैं उनको भी तैयार करें ताकि तफरी का और ये अच्छी चीज़ें बने। तो दरख्त जो हैं लगाना आब हवा और मौसम के हवाले से भी सही है। हमारी कोशिश है, जैसे आपके सामने नीम का दरख्त खड़ा है तो ये कितना खूबसूरत है, एक ही लगा हुआ है मगर पूरे शहर में, ये पूरे इलाके में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी कोशिश होगी और हमने जो ये इंतज़ाम जो किया है, हमारे सारे टीम जो हैं पार्क्स टीम के डायरेक्टर और उसकी टीम ने, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और आप ख़ुद देख रहे हैं कितना खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है ये एहतमाम किया है और जो है ये फूल लगाए हैं, सारी चीज़ें की हैं। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू हम इसको रखेंगे और हम जो है ये पौधे जो हैं लगाते रहेंगे और शहर को, अपने टाउन को, खसूसी जो है मॉडल टाउन को खूबसूरत और मिसाली टाउन बनाएंगे। उसी में हमारे विज़न है, हमारे चेयरमैन साहब या हमारी जो टीम है उन सब की जो है ये विज़न है कि हम इस मॉडल को, जैसे मॉडल इसका नाम है, ऐसे इसको कराची में मॉडल मिसाली बनाएंगे इंशाल्लाह। फूलों की नुमाइश में शरीक आवाम भी टाउन इंतजामिया की तारीफ किए बिना ना रह सकी। मुझे बहुत अच्छी लगी नुमाइश यहाँ की और बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ, झूले हैं वगैरह, बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल और मुझे यहाँ की बहुत खुशी हो रही है। बहुत मुख्तलिफ तरह के फूल हैं यहाँ लगे हुए और यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर महफिल पूरी लगी हुई है उसकी मुशायरा की और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर आज फूलों की नुमाइश लगी हुई है तो यहाँ पर आके मुझे एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर फूलों की नुमाइश हुई हुई है तो यहाँ पर आप आके देखें तो बहुत तरह के फूल हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ मुशायरे हो रहे हैं, मुशायरे के लिए यहाँ पर इनका इनेकाद किया गया है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि सब लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें आकर। इस मौके पर चेयरमैन यूसी आर्ट एहसन जमीर, यूसी वाइस चेयरमैन अहमद सलमान काशिफ, टाउन चीफ कोऑर्डिनेटर नजमुद्दीन, यूसी काउंसलर्स और दीगर भी मौजूद थे। डायरेक्टर बागात वासिक जफर की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। मज़ीद आपको बताएं कि शाह फैसल में जारी तरक्याती काम बाय तकमील तक पहुंच गया, जिससे आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से शाह फैसल टाउन की आवाम से किए गए वादों की तकमील जारी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कुछ अरसा कबल यूसी नंबर 5 गुलजार कॉलोनी सेक्टर F8 में शहीद जाहिर शाह मेहमन रोड का संगे बुनियाद रखा था। इस रोड और मॉडल पार्क की अतराफ की गलियों में रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया। शाह फैसल टाउन की आवाम की खिदमत के लिए शुरू किए गए मंसूबे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की काविशों से पाये तकमील की जानिब गामजन है। शाह फैसल टाउन की आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, हम अपनी आवाम के लिए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ खबर शामिल करेंगे, न्यू कराची टाउन में सीनियर मुलाजमीन की बाइज्जत रिटायरमेंट के मौके पर पुरवकार तकरीब की गई, जहाँ रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि न्यू कराची टाउन अपने मुखलिस मुलाजमीन को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में टाउन के 2 सीनियर और देरीना खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की रिटायरमेंट के मौके पर एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में टाउन इंतजामिया, अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रिटायर होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर समेत दीगर टाउन अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने अपने खिताब में कहा कि आज हम अपने उन साथियों को रुखसत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा न्यू कराची टाउन की खिदमत में गुजारा। मेहनत, दयानत और जिम्मेदारी के साथ फराइज की अदायगी उनकी पहचान रही है। ये तकरीब दरअसल इस पैगाम का इजहार है कि इदारा अपने मुखलिस मुलाजमीन को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया आइंदा भी मेहनती और ईमानदार मुलाजमीन की हौसला अफजाई जारी रखेगी ताकि इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी आए और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला ने तकरीब को खुश आइन करार देते हुए कहा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद एक मुस्बत रिवायत है जिससे मुलाजमीन में एहसास, तहफ्फुज़ और वाबस्तगी पैदा होगी। जब इदारा अपने मुलाजमीन को इज्जत देता है तो कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर होती है। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने अपने तासुरात में कहा कि टाउन के मुलाजमीन हमारे इदारे का असल सरमाया हैं, उनकी खिदमात को सराहना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हर मुलाजिम ये महसूस करे कि वो एक बावकार और जिम्मेदार इदारे का हिस्सा है। तकरीब के अख्तिताम पर रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को शील्ड्स, तहाइफ और फूल पेश किए गए, जबकि शिरका ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माहौल जज्बाती मगर पुरवकार रहा और साथी मुलाजिमीन ने अपने रुफका को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। ये तकरीब न सिर्फ रिटायर्ड मुलाजिमीन के एजाज में थी बल्कि इदारा जाती रिवायात, एहतराम खिदमत और बाहिमी क़ुव्वत की बेहतर मिसाल है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाज़माबाद के ज़ेर एहतमाम माहिरुल कादरी पार्क में शानदार फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 20,000 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के पौधे नुमाइश के लिए रखे गए। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाज़माबाद का मकसद आवाम को साफ सुथरा, खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाज़माबाद की जानिब से माहिरुल कादरी पार्क में खूबसूरत और रंगारंग फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के हमरा किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन मोहम्मद नुमान सिद्दीकी, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर अत्तर सईद खान, डायरेक्टर पार्क आसिफ हुसैन समेत दीगर बल्दियाती अफसरान और मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन नाज़माबाद टाउन ने खिताब करते हुए कहा, फूल और सब्जा न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि शहरियों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब करते हैं। उन्होंने कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाज़माबाद का मकसद आवाम को साफ सुथरा, खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम करना है और इसी विजन के तहत पार्क की बेहतरी, शजरकारी और फ्लावर शोज का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ तफरीह माहौल फराहम करती हैं बल्कि नई नस्ल में
قدرت اور محبت اور ماحول کے تحفظ کا شعور بھی اجاگر کرتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم نے کہا کہ شہری علاقوں میں سبزہ اور پھولوں کی نمائش جیسے اقدامات ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، عوامی فلاح کے منصوبوں میں بلدیاتی اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن میں تقریباً 98 پارک کا گراؤنڈ ہے، 70% ہم بحال کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے مستقل ہم اپنے پارک بحال کر رہے ہوتے ہیں۔ جس میں ہم کھڑے یہ بھی ہم نے بحال کیا ہے، بالکل اجڑا ہوا تھا، اور بحالی کے بعد اس کو مینٹین رکھنا ایک دوسرا مشکل ترین مرحلہ ہے، وہ بھی ہم حل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا واٹر باؤزر کا انتظام کیا ہوا ہے، اور جو ہے بہت سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے پارکوں کو بحال رکھ سکیں، اور الحمدللہ وہ بحال رکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر کسی کی نشاندہی کریں گے، ہم سے کوئی بھول چک ہو گئی ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے۔ اس وقت بھی ہم ناظم آباد میں 2 پارک اور 2 بڑے گراؤنڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ کلک بنا رہا ہے، اور یہ ہمارا مستقل جب سے ہم آئے تب سے ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں اور مینٹین کر رہے ہیں اور بناتے جا رہے ہیں پارکوں کو۔ جہاں تک یہ آج کی پھولوں کی نمائش ہے، یہ ہماری روایتی پھولوں کی نمائش ہے، ہر سال ہم یہ کرتے ہیں، اور اس وقت جو یہ پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے آج سے 4 دن یہ رہے گی۔ اس وقت اس میں جو ہے وہ 50 اقسام ہیں پھولوں کے، اور ہر قسم کے 4 کلر ہیں، اور اس کے علاوہ ٹوٹل ملا کے تقریباً یہ 50,000 مختلف قسم کے اس وقت پھول یہاں پہ لوگوں کے لیے اور نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی نے کہا کہ ٹاؤن کی سطح پر عوام کو صحت مند تفریح کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، اور فلاور شو جیسے ایونٹس شہریوں کے لیے خوشگوار لمحات کا باعث بنتے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پارکس آصف حسین نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ماہر القادری پارک میں منعقدہ یہ فلاور شو 4 دن تک جاری رہے گا۔ نمائش میں 30,000 سے زائد اقسام کے خوبصورت پھولوں اور پودوں کو شامل کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے عالمی دن برائے انسدادی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موقع پر بلدیہ ٹاؤن میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تشدد کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی دن برائے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن کے زیر اہتمام ایک بھرپور ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صدر PS 111 اور چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن جناب عبدالکریم آسکانی اور صدر و وائس چیئرمین ٹاؤن جناب عجب خان سواتی نے کی۔ ریلی کا آغاز TMC بلدیہ ٹاؤن کے دفتر سے کیا گیا، اور یہ مرکزی ہب ریور روڈ سے ہوتی ہوئی اپنے مقررہ مقام تک پہنچی۔ ریلی میں اراکین کونسل ممبران، میونسپل کمشنر سالک نذیر بھٹو، تمام محکموں کے افسران و عملہ، پارٹی کے تنظیمی عہدیداران اور کارکنان اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے، اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر پاک فوج زندہ باد، پاکستان رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان نیوی زندہ باد اور پاکستان ایئر فورس زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے، جبکہ بعض شرکا کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی کے دوران ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے مختلف واقعات کی شدید مذمت کی گئی، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ اس موقع پر بھی واضح کیا گیا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام اپنی پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ملک کی سالمیت، خود مختاری اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے افواج پاکستان، پاکستان رینجر، سندھ پولیس، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی، اور انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ٹاؤن جناب عبدالکریم آسکانی نے اپنے خطاب میں کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس جرت، ہمت اور بہادری کے ساتھ ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، وہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، اور ہمیں اپنی افواج پر ناز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی مثبت سوچ، کردار سازی اور قومی شعور کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، تاکہ وہ انتہا پسندی جیسے
जैसे रुझानात से महफूज रहते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में फाल किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को बुलवतनी, इत्तेहाद और रवादारी का पैगाम देना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आज का दिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसमें मैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह दहशतगर्दी का शिकार रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जो हालिया हमले हैं जिसमें इस्लामाबाद खुदकुश हमला हो गया, बलूचिस्तान के अंदर जो दिलखराश वाक़यात हो रहे हैं, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी के लहर ने जो सर उठाई हुई है, हम इसकी भरपूर तौर पर मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और आलमी बरादरी और पूरी दुनिया में आज का दिन एक अमन के तौर पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मनाया जाता है। और इसमें हम और हमारे बल्दिया टाउन के जितने भी पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और बल्दिया टाउन के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो सारे इस जो अमन वाक है इसमें शरीक हो रहे हैं। और ये एक हमारी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक पुरअमन पैगाम है। जिस तरह के हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ इन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही हैं, इसमें उन्होंने बहुत सारी शहादतें हुई हैं हमारी, जिसमें सिंध पुलिस भी है, पाकिस्तान आर्मी भी है, और हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं। उन तमाम शुहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दी का सर कुचला था, एक बार फिर ये इस तरह के मुनज़्ज़म होकर दोबारा ये साजिशें कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पाक फ़ौज दोबारा इसको उसी इनके मज़मूम मकासद को इसी तरह नाकाम करेगी। और जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो उनके आइन और रेजोल्यूशन के मुताबिक है कि जो जैसा कि पाकिस्तान का एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं दी। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें, जो अनासर जो साजिशें कर रहे हैं, जो अनासर हैं, उनको भी रोका जाए और उन मुल्कों को पाबंद किया जाए या उन्हें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे हैं। उसमें वाज़े सबूत मौजूद हैं, जिसमें हमारे हमसाया ममालिक ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर इस पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज़ किया जाए उसके लिए साजिशें कर रही है। तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा अहम किरदार है, पाकिस्तान भी उस अक़वाम मुत्तहिदा का अहम रुकन है। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उन ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाए, उन ममालिक को जवाबदेह होना चाहिए, और उन ममालिक को जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है, जिसमें हमारे फ़ौज और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं उसमें कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में अमन लाया गया है, लेकिन ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इसको हवा दे रहे हैं और इसको एक मुकम्मल मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से यही कहेंगे कि उन ममालिक के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए और उन्हें इस बात का पाबंद किया जाए कि अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। इख्तिताम पर इस अज़्म का इयादा किया गया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है और वतन अजीज़ के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। और अब आपको बताएं कि सोहराब गोद टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम के एजाज में गोदरा सोसाइटी ब्लॉक सी के रिहायशियों और पार्टी कारकुनान की जानिब से इनके एजाज में इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लाला अब्दुल रहीम की खिदमात को सराहा गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS97 और चेयरमैन सोहराब गोद टाउन लाला अब्दुल रहीम के सोहराब गोद टाउन में जारी रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर UC नंबर 5 गोदरा सोसाइटी ब्लॉक C के रिहायशियों और पार्टी वर्कर्स की जानिब से उनके एजाज में इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सोहराब गोद टाउन लाला अब्दुल रहीम की UC नंबर 5 गोदरा सोसाइटी ब्लॉक C आमद पर इलाका मकीनों और पार्टी वर्कर्स की जानिब से फूलों के हारों और गुलपाशी
के जरिए शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी वर्कर मोहम्मद अली बलोच समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इलाका मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी रिकॉर्ड तरक्याती कामों को सराहते हुए गोदरा सोसाइटी UC 5 ब्लॉक C में दरपेश सेवरेज और गलियों के मसाइल से चेयरमैन सोराब गोट टाउन को आगाह किया, जिस पर चेयरमैन सोराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि गोदरा सोसाइटी ब्लॉक C की गलियों में सेवरेज और दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं और जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के अज़्म के साथ सोराब गोट टाउन तामीर और तरक्की के सफर को मजीद तेज करने के लिए पुरअज़्म है। और यह खबर शामिल करेंगे मरी की तामीर और तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। चेयरमैन मरी टाउन जान मोहम्मद बलोच ने टाउन के वसाइल से मुकम्मल किए जाने वाले पार्कों का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा टाउन के वसाइल से मुकम्मल किए जाने वाले मलिर होम्स फैमिली पार्क और रेलवे कॉलोनी सरदार टाउन फैमिली पार्क UC नंबर 2 गाजी दाऊद बरोही का इफ्तिताह कर दिया। मज़कूरा पार्कों की तामीर के साथ क्रॉसिंग और मौसमी फूलों के पौधे, फूलों से मुज़य्यन दरख्तों के अलावा वॉकिंग ट्रैक, मीठे पानी के कनेक्शन, झूले, प्ले ग्राउंड और सेटिंग चेयर्स की सहूलियात फराहम की गयी। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन UC नंबर 2 गाजी दाऊद बरोही, मोहम्मद नवाज बलोच, सुप्रीडेंट इंजीनियर रहमतुल्ला अरबानी, मेमन डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच और महकमा जाती अफसरान के अलावा इलाकाई मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि शहर कराची की तामीर और तरक्की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। मलिर की तामीर और तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। इस मकसद की तकमील के लिए मलिर टाउन में तरक्याती मंसूबों का तसलसल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि मलिर टाउन की आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पार्कों के अलावा सेवरेज, पानी और शराहें हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मलिर टाउन में जामे प्लानिंग और अराकीन कौंसल और आवाम की सिफारिशात की रोशनी में तरक्याती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। अराकीन कौंसल पर मुश्तमिल कमेटी अपनी निगरानी में तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। जारी तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और निगरानी का खास ख्याल रखा जाए। बल्दियाती खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।